Guys, good afternoon to all. Okay, guys, आमे previous class रे introduction discuss करी थिले. So I think each and everyone clear about that. But today let's come to discuss particularly to our syllabus. I have discussed in previous period about syllabus, you know all. We have 4 books, invitation 1, 2, 3 and 4. Basically, you know, from invitation 1 is completely your prose and poetry, but today I think I will discuss about your invitation 3, which is very important because you are getting 60 marks from these topics. So, and otherwise this is known as writing part, writing skill. So from that part, today let's come to discuss graphics or picture. From this topic you are getting 10 marks in your pattern. So what is graphics and what is picture? Okay, so it is otherwise known as your interpretation. Are you listening? Yes or no? Hello guys, are you listening to me? Whenever you are feeling any problem, then directly you reply to us. Okay? Instantly reply. So graphics or picture is otherwise known as interpretation. So if you will ask me, sir, what is interpretation? Then you write it means to find out something hidden meaning. So you just know interpretation means to find out something hidden meaning. So where that hidden meaning find out? And what is that hidden meaning? Suppose, and this you can interpret both item. So what are that item? First one is non-verbal item and second one is verbal item. So we have 2 types of item. First one is non-verbal item and second is verbal item. This non-verbal item is otherwise known as pictorial figure, PF. Okay, the first I tell the graphics or picture. This is otherwise known as pictorial figure, and here is verbal item means this is written part, written item. ओके मैं डियर बुझी पारछो मु कोन कहूची. सो आमको जेतेबेले कोनोसी जिनिस को इंटरप्रेट करबा को पड़िबो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक, there are 2 types of interpretation item given. First item is non-verbal item and second item is verbal item. That yes, you can interpret both item. अच्छा देखा जाउची ना नहीं समझते कि अबे दोमर बोर्ड विजिबल होउची तो सुना जाउनी किंतु देखा पडुची तो ओके. सो तमे टिके अवश्य न सुना गले खाली देखिले मजा आसीबनी. मूवीटा खाली कौन देखिले भल लागिबो कि मु जानी पारुची किंतु कौन करिबा हमर टिके टेक्निकल प्रॉब्लम रहिची. एंड आई थिंक वेरी सून इट इज गोइंग टू बी क्लियर फ्रॉम मंडे. हमर चलीची से तार प्लान चलीची मंडे सुधा यू ऑल विल बी क्लियर एंड दैट विल बी नथिंग टेक्निकल प्रॉब्लम रिलेटेड लाइक दिस टुडे. सो फ्रॉम मंडे इट विल बी क्लियर. किंतु आज सॉरी टू से टिके पुणी सही कथा कहबी कि यू जस्ट वॉच इट. Though you are not listening me properly, but after your recording class will be sent to you very soon and you can listen it. But right now you only may see or may watch our board work. So you can interpret both item means non-verbal item to verbal, otherwise verbal to non-verbal. 2 things.
non-verbal to verbal or verbal to non-verbal. But basically in your first year, your question pattern is this one. Basically in your first year, the question pattern is this one, non-verbal item. Means, so now come to note it. What is non-verbal item? लिखो, the item which is expressed through an image or figure is known as non-verbal item. ओके, तो जो आइटम गुड़ाक चित्र आकार रे दिया जाइथिबो, फिगर आकार रे दिया जाइथिबो एवं ताकू कुहा जाइथिबो तुमको लेखा आकार रे प्रकाश करबा को, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल आइटम. जेमती कि तमे छुआ बेलू स्टोरी पढ़िथिबो थर्स्टी क्रो एंड ए ग्रीडी डॉग, तो तार पिक्चर भी दिया जाइथिबो एंड स्टोरी भी लिखा जाइथिबो. बट ए जो तुमर प्लस 2 सिलेबस पाई तो सेमती किछि पिक्चर दिया जाइथिबो, आमको कन्वर्ट करबा को पड़िबो स्टोरी रे, हमको कन्वर्ट करबा को पड़िबो गोटे पैराग्राफ रे. तो ताको केमती कन्वर्ट करबा, ता पे वे कोन, ता पे फार्मूला कोन. एबे हेडिंग करो, हाउ टू कन्वर्ट अ नॉन वर्बल आइटम इनटू वर्बल. हाउ टू कन्वर्ट अ non-verbal item into verbal. गोटे नॉन वर्बल आइटम को केमती वर्बल आइटम को आमे कन्वर्ट करिवा, चेंजेस केमती करिवा. सो सेति पई किछि फार्मूला. फर्स्ट होउची हेडिंग और टाइटल. नंबर 2 इंट्रोडक्शन और ओपनिंग पार्ट. नंबर 3 पॉइंट एनालिसिस. नंबर 4 कमेंट पार्ट. एंड नंबर 5 राइटर्स ओन व्यू. से जो पांचटा स्टेप्स रही, ए पांचटा स्टेप्स रे तमे गोटे नॉन वर्बल आइटम को वर्बल आइटम रे कन्वर्ट करि पारिबो. तो एबे तम मन रे प्रश्न आसुतिबो, सर से जो नॉन वर्बल आइटम गुडी को कोन कोन चित्र आकार रे आसी पारे, व्हाट आर द फिगर्स. या नुहे कि आम छोट पिलांको कथा पढ़ुचे, आमको किसी आईमा कहानी कथा देइथिबो, बा आमको किसी जो छोट छुआ बेलर थर्स्टी क्रो एंड ए ग्रीडी डॉग कथा मु कहली सेट देइथिबो. इटी टिके आमको डेवलप फार्मूला दउछि जोटा कि डे टू डे लाइफ रे तमे यूज करूछ. तो से गुडा को कोन मु कहबी, व्हाट आर द यूनिट्स of non-verbal item. non-verbal item कौन कौन है ही पारे, तलक लेख, there are 7 unit of non-verbal item. एटा मु इन्विटेशन 3 रु पढ़ी, कन्फ्यूज हो नहीं. इन्विटेशन 3 बुक को गले तुम जानी परिबो. There are 7 units of non-verbal items. So that's कौन कौन. First one is graph, second one is chart, third one is pie chart,
fourth one is table, fifth one is bar diagram, sixth one is tree table, and seven one is land map or guide map. ओके माय डियर, तो एवढा का आमे एबे लेखा आकार लिखी देले तुम से साइड रे छोटो छोटो पिक्चर भी कर दउची तुमे देखि परिबो। ग्राफ कथा तो तुमे हाई स्कूल लाइफ रो रिलेटेड थिवो। चार्ट एबे आईपीएल चलीची तुमे देखि परथिबो टीवी परदारे जो ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, सपोज गोटे बैट्समैन केते ओवर रे केते रन करूची तार जो रिलेटेड ग्राफ्स दिया जाउची ताकू आमे कहूचे एक कॉलम एक्सप्रेशन करूचे, दैट इज कॉल्ड चार्ट। एंड पाई चार्ट, पाई मीन्स यू नो सर्कल वृत्त एंड चार्ट मीन्स इट्स डिवीजन। ओके, एंड फोर्थ आइटम इज टेबल, जहाँ को तुम हाई स्कूल लाइफ रे ओडिया रे जानिस सारणी। फाइव वन इज बार डायग्राम, दिस इज लाइक चार्ट, एटा चार्ट भली किंतु चार्टा पूरा नजदीक अच्छी पाखापाखि, एटा टिके डिस्टेंस रहिबो। ओके, एंड ए ट्री टेबल लाइक दिस, एंड लास्ट वन इज योर लैंड मैप और गाइड मैप। लैंड मैप कि गाइड मैप तुम भी देखी थी, सपोज योर एल्डर सिस्टर और ब्रदर जो मैरेज हो तार से जो इनविटेशन कार्ड गुड़ा जो थी से कार्ड पछपटे सपोज तुम जो जोटी रही तुम प्लेस रही वेन्यू रही से वेन्यू को जीवाई जो एड्रेस थाए सेटा ये लैंड मैप और गाइड मैप आकार दिया देते। सो लाइक दिस 1 to 7 ग्राफ, चार्ट, पाई चार्ट, टेबल, such type of a picture, such type of a figure are given, and you have to told that you have to convert the information, the data given in the picture to your verbal item, means your written part. गोटे एग्जांपल मु देखैले तमे भल से जानि परिबो। याकु लिखि दबो ना, निहाती भी एगुडा को दरकार, या पिक्चर को भी मन रखिबा दरकार। एमिति ही क्वेश्चन देइथिबो, यारी आकार रे किछि इन्फॉर्मेशन हमकु देइथिबो, तो गोटे एग्जांपल करिकि मु तुमको देखै देबा चाहिबी। सपोज एमती गोटे क्वेश्चन देइछि, द पाई चार्ट below shows about how Mr. Panda spends his monthly salary under different heads ओके तापरे फुल स्टॉप आसीबो। राइट अ पैराग्राफ in about 70 words using the information given in the chart. ओके, एबो तले से चार्टा देथिबो। सपोज एजुकेशन 30%, food item 25%, house rent
20%, 5% entertainment, 12% medicine, and 8% saving. So like this question एमिति ही तुमको दिया जाइथिबो. Suppose that person is Mr. Panda and Mr. Panda is a government service holder. So what salary he is getting from as a servant of government servant? So how he spends in different items, in different heads. So what are the heads? The heads are education, food item, medicine, house rent, saving and entertainment. So suppose he is getting 100 rupees. So how he spends that 100 rupees? In different way, in different heads. So these are our instruction, these are our information, these are our data. And according to our information, according to this data, according to this information, we have to make a paragraph. आमे जदि गोटे paragraph बनै दबा in about 70 words, then it will this non verbal item is converted into verbal item. दी प्रकार है गला. एटा तुम सेकंड ईयर को भी पढ़ा है गला. केमदी ना सपोज हमको इनफॉरमेशन दे देछि, पैसेज दे देछि, एबो हमको कहितबा चित्र करिया पे, फिगर करिया पे, तो आमे कोन करिबा? डाटा को देखि कि चित्र भी करि परिबा कि नाही. तो चित्र देछि आमे ताको केमदी डाटा रे कन्वर्ट करिबा सेटा आगो म तुमको कहि देबी. तो आमे जो आंसर लिखिबा से आंसर पे मु जो पांचटा स्टेप्स कहि छी से स्टेप्स को टिके फॉलो करो. मोर फर्स्ट स्टेप थिला हेडिंग और टाइटल. तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन आमर ये जो क्वेश्चन चेया जाइथिला कि मिस्टर पंडा नामक जने व्यक्ति तांकर मासिक दरमा को 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 उपाय रे केमिति खर्च करूछंती. तो सेही प्रश्न अनुसार आमे हेडिंग करि पारिबा एक्सपेंडिचर हैबिट ऑफ मिस्टर पंडा. हाँ छुआ माने इटी गोटे कथा ध्यान दब कि जेतेटी वर्ड आम यूज करूचे से प्रति वर्ड वुड बी कैपिटल. आम जेते वर्ड यूज करवा से प्रति वर्ड रो फर्स्ट लेटर गुड़िक कैपिटल हेले आमर टाइटल टे टिके भल लागिबो. आउ अनेक पिला माने कोन करंती ये टाइटल तिले अंडरलाइन कर दियंती. तो अंडरलाइन केही भी करिवो नाही. अंडरलाइन कले सेटा गोटे भल इंप्रेशन हबनी. तापरे आमे स्टार्ट करिबा इंट्रोडक्शन, तापरे स्टार्ट करिबा ओपनिंग पार्ट. हाँ ओपनिंग पार्ट पई गोटे स्ट्रक्चर भी अछि. मु तो सेते बेले कहि नथली, एबे मन रखि पार. जे कोनसी पैराग्राफ रो गोटे आमे ओपनिंग करिबा तो ता पे स्ट्रक्चर होछि द बा दिस, लाइक दिस सेमिति द और दिस प्लस पीएफ. पीएफ मतलब पिक्चोरियल फिगर, जहां हमको क्वेश्चन रे पिक्चोरियल फिगर दिया जाइछि. पिक्चोरियल फिगर कोन दिया जाइछि? पाई चार्ट दिया जाइछि. प्लस आईवी मतलब इंट्रोडक्शन वर्ब. इंट्रोडक्शन वर्ब रे के हे परिबो? सो, नैरेट, रिवेल, हिंट्स, इलाबोरेट, प्रेजेंट, रिप्रेजेंट. से थ्रू गोटे वर्ब को तबे नहीं परिबो. प्लस रिगार्डिंग अबाउट. रिगार्डिंग अबाउट का मतलब के विषय में, हमको को विषय दिया जाइछि पैराग्राफ टे लिखिबा पई. तो एति की फार्मूला को जदि हम यूज करि दउचे हम पैराग्राफ रो स्टार्टिंग टा भलो ही परिबा. तल देखिबा एति की फार्मूला को यूज करि के हम पैराग्राफ रो स्टार्टिंग केमति बनउचे. तो सूत्र अनुसार मु फास्ट कहिबी द इटी पिक्चर होउछि पाई चार्ट. मु मन कर नेली आईवी नउछि रिवेल्स. द पाई चार्ट रिवेल्स अबाउट के विषय में? हाउ मिस्टर पंडा स्पेंड्स his monthly salary
अंडर डिफरेंट हेड्स। ओके पैराग्राफ तो मत कंटिन्यू लिखा पड़ो बट स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन मु बताऊँगी जमती कि फर्स्ट स्टेप रे मोर हेडिंग थिला किछि सिटी स्पेस छाड़िली पैराग्राफ आरंभ कली टिके राइट हैंड साइड रु लिखा पड़ो लेफ्ट रु टिके जगह छाड़ा पड़ो तापर मोर आसला इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन एट हो गला तापर मु पॉइंट एनालिसिस करी जो डाटा मते दिया जाइछि जो इनफॉरमेशन दिया जाइछि से इनफॉरमेशन गुडा को मते सेंटेंस रे एक्सप्रेस करबा पड़िबो आमे टिके टॉप टू बॉटम आसिले भलो हबो एबो जदि छुआ माने आमे केवल डाटा को आमे लिखि दउछे तो आमे पैराग्राफ टा टिके सेते मजबूत होउनी बा हमको जेति कि वर्ड रे कहि कवर करबा को सेति कि वर्ड रे एक्सप्रेशन हेई पारुनी तो मते कौन करिया पड़िबो ना मोर जेति कि डाटा अछि मु चाहिले मोर प्रति डाटा उपरे बा प्रति इनफॉरमेशन उपरे गोटे गोटे कमेंट भी देई परिबी जेमति कि मु एमति कमेंट दबा को चाहिबी मिस्टर पंडा is an educated person, full stop. He knows the value of education. So it full stop दे देबो he spends a huge means mega bada so he spends a huge amount for education. Okay इटी भी एमती लिखि परिबो so he spends a lions amount भी लिखि परिबो टिका और बेटर हबो so he spends a huge amount for education full stop दबो that is how सेटा केते that is 35% I think पिक्चर टा जो करथिले मोर मने नहीं तमे टिके देखि दबो that is 35% सेटा 35% हे होची ओके ताले इठी हमकु 70 वर्ड्स र एक्सप्रेशन पई किछि कमेंट पार्ट चूज करबा पड़ुची सेत पई मिस्टर पंडा के विषय रे मु लिखली गोटे पार्ट की he is an educated mass and he knows the value of education so he spends a huge amount that is 35%. ओके देन कम टू नेक्स्ट पार्ट तापर से जो 35% रो तळ को कोन अछि तो मु भाबुची बोधे कोन ना तुमर फूड आइटम अछि से पिक्चर ता तो पूरा पर्टिकुलरली मोर मन पड़नी तो मैं एमते लिखिबो जे ही स्पेंड्स 30% के 25% जा भी अछि लिखिबो ही स्पेंड्स 30% अमाउंट for food item to his family. ओके माय डियर तो तापर पर जहा रही तापर रही सपोज तुम कौन ना से हाउस रेंट पाई तुम एमती लिख पार टिके सेंटेंस चेंज कर 20% ऑफ हिज इनकम goes towards providing by giving house rent. आउ जे कोन गुडा डाटा रहिला तमे ताको एतिक भीतर कवर करिवो आउ 5% कोटी 12% कोटी 8% तो ताको कोन रूपे खर्च करंती तो लास्ट को मते कोन करबा पड़िबो ना गोटे कमेंट दबाक पड़िबो रिगार्डिंग आवर टोटल पैराग्राफ को लेकिन गोटे कमेंट करबा कोन कमेंट करबा ना मिस्टर पंडा सबुटो अधिक खर्च कोथरे करछन्ते एवं सबुटो कम खर्च कोथरे करछन्ते सही पैराग्राफ लिख परबा हमें मिस्टर पंडा स्पेंड्स मैक्सिमम income or amount in education and minimum in कोदरे I think entertainment जो उड़ा भी थीबो पिक्चर जो उड़ा थीबो एति के होला तापर लास्ट को आ गोटे छोटो पैराग्राफ राइटर्स ओन व्यू
राइटर्स निज इन एजुकेशन एंड मिनिमम इन एंटरटेनमेंट। तो लास्ट को गोटे आमको छोट पैराग्राफ लिखा पड़ो इन 1 or 2 लाइन कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट और राइटर्स ओन व्यू। तो ओन व्यू मीन्स अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू इनफॉरमेशन, अकॉर्डिंग टू डाटा अनुଯାयी कौन गोटे व्यू दबाक पड़ो है कि ये डाटा दी जाए एक्सपेंडिचर व्यू, तांकर एक्सपेंडिचर रिपोर्ट ना कि मु देदेवी किसी से गाड़ी केते स्पीड रे चलाउथिले कि मु देदेवी तांकर ऑफिस रे केमदी मेंटेनेंस सेमी देबिनी, मते पैराग्राफ रे देइछि कि से केमदी तांकर एक्सपेंडिचर करंती। तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ मते राइटर्स आज ए राइटर मते राइटर्स व्यू लिखिबाक पड़िबो। तो मु राइटर्स व्यू कोन लेखुची, तमे कोन लेखिबो, मु जहां लेखिबी तमे जे से लेखिबो सेमती किछि माने नाही। इट विल वेरी टू राइटर, पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो मु लास्ट को यह लिखी सो इट इज क्लियर दैट मिस्टर पंडा इज अ वाइज पर्सन बिकॉज he spends his income जुडिशियली मतलब विचारवंत भाव में तंकर खर्च करती। सो एतिक लिखिदेले ये भी 70 वर्ड्स हो गला आ तुम समस्त 10 मार्क्स मिल जिवो। तो जदि यार अल्टर करवा आमको एतिक पेसेज देइथिबो, आमको एतिक वर्ड्स भितर गोटे पैराग्राफ देइथिबो, तो ये पैराग्राफ को आमे कहूचे कौन ना वर्बल मीन्स रिटिन। एवं क्वेश्चन आमको कही आमको गोटे नॉन वर्बल आइटम करने को पड़ो, माने गोटे पिक्चर करने को पड़ो। तो आम आराम से या देखी पारिबा एवं ये जानीपर जे से पिक्चरटा कौन हम ना से गोटे पाई चार्ट हम। एठू मनकर देथिबो टेबुल, पिक्चर गोटे टेबुल हम। एठी देथिबो पिक्चर गोटे बार डायग्राम, पिक्चर बार डायग्राम हम। एठी देथिबो पिक्चर कौन ना गोटे ट्री टेबुल, तो पिक्चर हम ट्री टेबुल। तो आमर ये जो डिस्क्रिप्शन रु जना पड़ुछि कि पिक्चर होइते गोटे पाई चार्ट। तो आम एमती लिखिदेवा गोटे पाई चार्ट करदेवा, जी डाटा देथिबो सेतकी भाग भाग करदेवा। एवं जहाँ देथिबो 35% एजुकेशन, 20% हाउस रेंट, 12% व्हाट एवर दैट मे भी जहाँ भी देथिबो करदेबो। तो से तुमको मिल जाओ 10 मार्क। तो ये दीटा जाक हूँ अल्टर मीन्स जदि पैसेज देथिबो तुमको कन्वर्ट करने को पड़ो नॉन वर्बल आइटम को, आ जदि नॉन वर्बल आइटम देथिबो तुमको वर्बल मीन्स पैसेज मीन्स रिटिन आइटम रे कन्वर्ट करने को पड़ो। पुष्मार्टी